A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So class, today we all are going to continue this chapter number 3, drainage of your book geography. Okay. So our today we all are going to discuss about lakes. Okay, so we will discuss about lakes and roles of rivers in the economy and river pollution. These are some of the topics which we will discuss today. Okay, class, lakes. So just look at these beautiful lakes, these beautiful pictures of the lakes. Dal Lake, houseboat, okay, shikaras. These are like some beautiful spots, beautiful adventurous, and you can say attractive places. Okay, so imagine that. देखो दाल लेक कहाँ है? दाल लेक इज इन श्रीनगर, ठीक है. हाउस बोट, शिकाराज, नैनीताल और भी टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पे हमें ये ब्यूटीफुल लेक्स मिल जाते हैं, ठीक है. सो इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस डिड नॉट हैव अ लेक, would they have been as attractive as they are today? No, they are not as attractive as they are today because it plays a very significant role in our life, ठीक है. It like it is excursion for us, ठीक है. We go there, we enjoy there, right? But uh, apart from attraction for tourist lakes are also important to human beings in many ways. As you all know, lakes, pure फ्रेश वाटर लेक्स भी होते हैं एंड सॉल्ट वाटर लेक्स भी होते हैं. तो फ्रेश वाटर लेक्स ह्यूमन यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन यूज के लिए, राइट. सो इनके बहुत और भी यूजेस होते हैं लेक्स के. सो लेक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. Tourist centers and enhances natural beauty. Obviously this is tourist centers हैं, ठीक है. enhances है, tourist center है means it generate employment. Natural beauty, it enhances natural beauty. Habitat for aquatic life, environment, natural environment के लिए, marine life के लिए, aquatic life के लिए जो है, ठीक है, घर है, ठीक है, जितने भी मरीन एनिमल्स हैं, ठीक है, फिश हो गई, ठीक है, और स्नेक्स हो गए, बहुत से टॉर्टोइज हो गए, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, मरीन एनिमल्स हैं, ठीक है, जो पानी में रहते हैं. तो लेक्स आर हैबिटेड फॉर एक्वेटिक लाइफ. इट हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर, ठीक है. रिवर के फ्लो को रेगुलेट करने में जो है, ठीक है, रेगुलेट करने में काफी हेल्प करता है लेक्स. इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड सप्लाइज वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन. फ्लडिंग को प्रिवेंट करता है. लेक क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर अगर रिवर में एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है तो उस वाटर को लेक में ट्रांसफर कर सकते हैं. तो लेक्स जो है इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड समटाइम्स इट सप्लाइज वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ठीक है. जब मॉनसून नहीं है, ड्राई सीजन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो लेक वाटर हेल्प करता है, ठीक है, सप्लाई करते हैं लेक वाटर को, जिससे कि हमारी जो वाटर नीड है वो फुलफिल होती है. इट यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, ठीक है, पावर जनरेशन के लिए, हाइडल पावर के लिए भी लेक्स का यूज किया जाता है. दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स. आसपास का जो हमारा एनवायरनमेंट है काफी मॉडरेट रहता है, ब्यूटीफुल रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं रहता. okay, so these are like some of the advantages, some you can say some of the importance of the lakes. So now why lakes of large extent are called seas? Some lakes of the large extent are called sea. जैसे the Caspian Sea हो गया, Dead Sea हो गया, Aral Seas हो गए, ठीक है. इनको ये एक्चुअली में they are not sea, they are lakes, but ये बहुत large extent में होते हैं. That's why it is called as sea instead of lake. Caspian Sea, Dead Sea, Aral Sea, we are using sea instead of lake because they are of very large extent. Okay, so now there are different types of lakes and India has many lakes and they differ from each other in size and और भी दूसरे characteristics हैं जिसके basis पे वो एक दूसरे से differ करते हैं. Some lakes are permanent, मतलब उनमें permanent lakes हैं, ठीक है. Some lakes are permanent, उसमें 365 days जो है पानी रहता है आपका, every मतलब permanent है. Some contains water only during rainy season, just like peninsular rivers or just like some rivers
लेक्स में भी क्या है, ड्रेनी सीजन में ही वाटर रहता है। कुछ लेक्स ऐसे हैं, सम लेक्स आर सॉल्ट वाटर लेक्स, जैसे चिलिका लेक है आपका लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। तो सम लेक्स आर सॉल्ट वाटर लेक्स एंड सम लेक्स आर फ्रेश वाटर लेक्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन लेक्स कैसे कैसे फॉर्म हो रही है लेक्स। ग्लेशियर लेक्स होते हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स के पास से, ग्लेशियर्स से क्या होता है, एक रिवर राइज हो रही है, एमर्ज हो रही है। और क्या होता है, कभी कभी एक ग्लेशियर से एक छोटे से एरिया में जो है वाटर जो है आके वाटर आ जाता है, ठीक है। ग्लेशियर से लेक भी फॉर्म होते हैं, तो ग्लेशियर लेक्स हो गए आपके। ऑक्सबो लेक्स, ऑक्सबो बताया था, ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है, बहुत सारे क्या आ रहे हैं, मिएंडर्स आ रहे हैं। तो मिएंडर जब उसी डायरेक्शन में जब एक रिवर बहुत टाइम तक फ्लो करती है, तो ये जो मिएंडर है क्या करता है, एक टाइम के बाद कट हो जाता है और वो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो जस्ट लुक एट दिस, ये भी क्या है, एक ये जो फॉर्मेशन है, रिवर थी, रिवर से फिर क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया और यहाँ से क्या बन गया, ऑक्सबो लेक्स बन गए। लगून्स, ठीक है, लगून्स के फॉर्मेशन होते हैं कि जब वाटर बॉडी डिवाइड हो जाती है, बैरियर रीफ से हो सकता है, सैंड से हो सकता है, और वो एक क्या बना लेती है, एक लगून बना लेती है, ठीक है। और क्या है, इनलैंड ड्रेनेज लैंड, इनलैंड फर्स्ट ऑफ ऑल इनलैंड आपकी ड्रेनेज क्या होता है, इनलैंड ड्रेनेज जब कोई भी रिवर, ठीक है, अपने आप को ड्रेन कहाँ नहीं कर पाती है, सी में ड्रेन नहीं कर पाती है, देन that drainage is known as inland drainage in which rivers do not reach an ocean or sea but empty their waters in a lake or an inland sea। ठीक है, कोई रिवर है वो कहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, सी तक नहीं पहुंच पाती है या ओशियन तक नहीं पहुंच पाती है, और अपना जो वाटर है कहाँ पे एम्प्टी करती है, कोई एक लेक में एम्प्टी करती है या फिर एक कोई इनलैंड सी में एम्प्टी करती है। तो उस टाइप के लेक्स को हम इनलैंड ड्रेनेज लेक्स बोलते हैं। ओके, ओके, नाउ ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं, ग्लेशियर लेक्स, these lakes are formed due to the action of glaciers and ice sheets। ठीक है, जब मेल्ट करती हैं आइस शीट्स और ग्लेशियर्स, तो इससे ग्लेशियर लेक्स की फॉर्मेशन होती है। एंड these lakes are fresh water lakes, so the basin is dug out by glaciers and the impoundment is filled with the snow melt। ठीक है, जो बेसिन है इज डग आउट बाय ग्लेशियर, जो मेन वाटर आपका वाटर है कहाँ से एमर्ज होके आ रहा है, ग्लेशियर से आ रहा है। और ये जो मेन आपका ग्लेशियर आ रहा है, ठीक है, बेसिन जो यहाँ पे डग आउट किया जाता है, और इससे जो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे फिल हो रहा है। इम्पाउंडमेंट इज फिल्ड, मतलब ये जो एरिया है इसको इम्पाउंडमेंट बोला हुआ है, खाली एरिया बोला हुआ है। और उसको किससे फिल्ड किया जाता है, जो भी स्नो मेल्ट होके आ रही है वो यहाँ पे एज इन द फॉर्म ऑफ वाटर यहाँ पे क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है, फिल होता रहता है। एग्जाम्पल क्या क्या है, बुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, दाल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल लेक, लोकटाक, बारापानी आर सम ऑफ द important freshwater lakes, freshwater lakes formed by glaciers। Okay, now next is oxbow lakes. Due to turns and twists, erosions and depositions along the sides of the meanders। अब देखो, I already explained you this, बहुत सारे turns and twists हो रहे हैं, ठीक है, पहले ये ऐसे जा रहा होगा, ये रिवर ऐसे जा रही थी। तो टर्न्स एंड ट्विस्ट में क्या होता है, टर्न्स एंड ट्विस्ट के साथ एज यू नो रिवर साथ में क्या क्या लेके आती है, बहुत सारा डिपोजिशन भी अपने साथ लेकर आती है। तो वो डिपोजिशन क्या है, मिएंडर में मिएंडर्स होते हैं, ठीक है, बताया था ना ये मिएंडर होता है, दिस थिंग इज मिएंडर। तो ये मिएंडर क्या है, साथ साथ में वहां पे जो इरोजन है, डिपोजिशन है, उस मिएंडर के साइड में डिपॉजिट होता रहता है और एक लैंड क्रिएट कर देता है। and in due course of time that the meander loops off from the river। ठीक है, वो जो meander loop है रिवर से सेपरेट हो जाता है, एक कट आ जाता है और इससे ऑक्सबो लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है आपकी। नेक्स्ट है लगून, ठीक है, मोस्टली लगून्स आर सॉल्ट वाटर। Lagoons are shallow body of water separated from a larger body of water by barrier island or reefs। ठीक है, अब देखो बेस हो गया, ठीक है, दिस दीज आर एक ये लार्ज वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है,
बैरियर आ रहा है, ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर आ गया या सैंड बार आ गया या आप बोल सकते हो क्लिफ आ गया, ठीक है, तो या कोरल रीफ आ गया, तो यहाँ जो साइड साइड में आप थोड़ा सा एरिया देख रहे हो, यहाँ से पानी आ रहा है ना, यहाँ पे से पानी आ रहा है और इस एरिया में क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, तो ये जो है लगून है, इसको हम क्या बोलते हैं, लगून बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, चिलिका लेक द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक हो गया, चिलिका लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द lagoons. Next is inland drainage lake. They are formed due to drainage of river water. Example Sambhar lake. ठीक है, ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर, ठीक है, रिवर वाटर के ड्रेनेज से, ठीक है, जब ड्रेन हो जाता है कोई वाटर बॉडी, जैसे लूनी रिवर है आपके राजस्थान की, लूनी रिवर कौन सी लेक को बनाती है, सांभर लेक को बनाती है, क्योंकि उसका जो वाटर है कहाँ पे एम्प्टी हो रहा है, वो सांभर लेक में आके एम्प्टी हो रहा है, ठीक है, तो वो एक लेक बना दिया, वो ओशियन सी तक मिल नहीं पा रही है लूनी लेक, ठीक है, तो एग्जाम्पल सांभर लेक ऑफ राजस्थान। दे आर समटाइम्स सीजनल, सीजनल भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकते हैं, इनलैंड ड्रेनेज लेक। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सॉल्ट वाटर लेक, मोस्टली जैसे सांभर लेक आपका सॉल्ट वाटर लेक है, मोस्टली सॉल्ट वाटर लेक होता है। Apart from natural lakes, the damming of the rivers for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम से क्या है, एक लेक बनाया गया है गुरु गोबिंद सागर, तो ये इस टाइप के लेक्स को जब ह्यूमंस किसी लेक को बनाते हैं, ठीक है, नेचुरल लेक के अलावा ह्यूमंस जो अपने लेक्स बनाते हैं, ठीक है, डैमिंग पर्पस के लिए या फिर फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर, तो उसको हम ह्यूमन लेक्स और आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं। गुरु गोबिंद सागर लेक ऑफ भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ठीक है, गुरु भाखड़ा नांगल डैम is an artificial lake. Just look at this picture, this is the picture of सांभर लेक, ठीक है, ये आपका इनलैंड ड्रेनेज का है आपका। Now next is role of rivers in the economy. So rivers have been fundamental importance throughout the human history. हमने civilizations भी पढ़ी, तो early civilization के भी जो हमें evidences मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, rivers के पास में ही मिले हैं। तो rivers जो है humans की life में बहुत ज्यादा important role play करती है, बहुत basic role play करती है, because रिवर जो है, वाटर जो है हमारी लाइफ लाइन है। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। बहुत से ह्यूमन एक्टिविटीज हम देखते हैं कि वाटर से ही है, ठीक है, ड्रिंक, हमें खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए, ठीक है, आज के टाइम पे तो हम इरिगेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं, नेविगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो रिवर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द ह्यूमन हिस्ट्री। सो एंड स्पेशली टू अ कंट्री लाइक इंडिया, स्पेशली इंडिया के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया में एग्रीकल्चर जो है मेजर सोर्स है हमारी लाइवलीहुड का, ठीक है, बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया, और यहाँ पे फूड, ऑब्वियसली फूड बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, फूड के लिए एग्रीकल्चर करना जरूरी है, और एग्रीकल्चर के लिए हमारा इरिगेशन सिस्टम का अच्छा होना जरूरी है। तो हम वाटर का इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हमारी बेसिक नीड्स के अलावा बता रही हूँ, इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, इन सब के लिए यूज लेते हैं हम। So river pollution, the growing domestic, municipal, industrial and agricultural demand for water from rivers naturally affects the quality of water. Obviously, domestic purpose में हम कपड़े धो रहे हैं तो डिटर्जेंट डाल रहे हैं, तो केमिकल जा रहा है, तो रिवर पोल्यूट हो रही है, वाटर पोल्यूट हो रहा है, म्यूनिसिपल वेस्ट होगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चरल डिमांड जो है हमारी वाटर की, तो इससे रिवर्स जो है नेचुरली, ऑब्वियसली रिवर वाटर जो है वो बहुत, उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम, ठीक है, अब पानी हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, रिवर्स से पानी हम ड्रेन किए जा रहे हैं हमारी नीड्स के लिए, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, रिवर का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रहा है टाइम टू टाइम। Heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the rivers.
सीवेज हो गया, ठीक है, वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली रिवर में डाल दिया जा रहा है, जिससे कि रिवर बहुत ज्यादा पल्यूट हो रही है, ठीक है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है कि उसको ट्रीट कर रहे हैं किसी प्रोसेस से, कुछ भी नहीं हो रहा है, डायरेक्टली जो वेस्ट आ रहा है, जो केमिकल वेस्ट आ रहा है, उसको डायरेक्टली कहाँ पे एम्प्टी किया जा रहा है, रिवर में एम्प्टी किया जा रहा है. So this affects not only the quality of water but also the self cleansing capacity of the river. ठीक है, अब नेचर है, गॉड ने हमारे नेचर को, हर एक नेचर में हर चीज इतनी ब्यूटीफुली और इतनी इंडिपेंडेंट बनाई है कि अब रिवर की खुद की कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को क्लीन कर सके, बट हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज ने क्या कर दिया है, रिवर की वाटर क्वालिटी को इतना डिक्रीज कर दिया है, इतना इफेक्ट कर दिया है कि उसकी जो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी थी ना, वो भी बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, वो कम हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल, गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads within 20 किलोमीटर of large cities. अब देखो गंगा वाटर का ही एग्जांपल ले लो, गंगा रिवर का ही, उसमें हम प्योरेस्ट रिवर मानते हैं गंगा रिवर को, बट सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी आपका गंगा रिवर में ही है, ड्यू टू आवर रिलीजियस एक्टिविटीज बोल लो, ठीक है, या फिर आप बोल लो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट बोल लो, ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को हम उसमें एम्प्टी कर रहे हैं, या फिर सीवेज को उसमें एम्प्टी कर रहे हैं, ठीक है. तो ड्यू टू दीज एक्टिविटीज जो अब सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी है रिवर की, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है. इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन भी आपका बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, अर्बनाइजेशन, लोग क्या है अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, रूरल प्लेसेस जो हैं वो क्या हो रही है, वहां से लोग शिफ्ट हो रहे हैं, सिटीज में शिफ्ट हो रहे हैं, और वहां पे पानी की डिमांड जो है, वाटर डिमांड ज्यादा है, तो इससे क्या है, पोल्यूशन लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, और मैनी रिवर्स हैज बीन पोल्यूशन लेवल ऑफ मैनी रिवर्स हैज बीन राइजिंग, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, और अर्बनाइजेशन के वजह से क्या हो रहा है, वाटर डिमांड इंक्रीज हो रही है, और इंडस्ट्रीज का भी वेस्ट जो है आपका रिवर वाटर में ही हो रहा है. So concern over rising pollution in our river led to the launching of various action plans to clean the rivers. ठीक है, जैसे एक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, नमामि नर्मदे, एक कंजर्वेशन प्लान आपका था नर्मदा बचाने के लिए, ठीक है, नर्मदा रिवर को बचाने के लिए एक कंजर्वेशन प्लान भी चल रहा है, नमामि नर्मदे, I forgot the name, just a minute. नर्मदे नमामि करके कुछ ये प्लान था, ठीक है. अब गंगा रिवर के लिए भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ठीक है. The river cleaning program in the country was initiated with the launching of Ganga Action Plan in 1985. 1985 में गंगा एक्शन प्लान को इनिशिएट किया गया था, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था. The plan was expanded to cover other rivers under the National River Conservation Plan. With this Ganga Action Plan, साथ में एक और इस प्लान के अंदर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान को भी इंक्लूड किया 1995 में, जिससे कि और भी रिवर्स क्या हो सके, क्लीन हो सके. द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एनआरसीपी का, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान का, टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर्स विच आर मेजर वाटर सोर्सेज इन द कंट्री थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन अबेटमेंट वर्क. अब जो वाटर सोर्सेज है, रिवर इंडिया का सबसे मेजर सोर्स है वाटर का, ठीक है, मेजर वाटर सोर्स है हमारे कंट्री का, और इसे इम्प्लीमेंट इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से हम क्या कर रहे हैं, अपने वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, रिवर की वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं. सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. ओके, सो I hope this chapter is very much clear to you. And now we will talk about map. ठीक है, मैप वर्क डिस्कस करना है इस